ईरान की शिराज में जन्मे महात्मा बाप ने अपने विश्वासों के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया जब तक कि 9 जुलाई 1850 को दोपहर 12 बजे बटालियन के 750 सैनिकों ने उन्हें गोली नहीं मार दी। वही मानवता को एक नए दिव्य रहस्यों से आगमन के लिए तैयार करना था। एकता, शांति और समानता की उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाती है, जो व्यक्तियों से प्रेम, एकता और करुणा के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान करती है तथा अंततः सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। महात्मा बाप की इसी मिशन को आगे बढ़ाने के मंशा से 9 जुलाई को बहाई धर्म के अग्रदूत महात्मा बाप की शहादत की वर्षगांठ पर मुंबई के बहाई सेंटर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें बहाई धर्म के संस्थापक, पैगंबर, परम पावन बहाउल्लाह के अग्रदूत माने जाने वाले महात्मा बाप का मिशन क्या था, इस पर चर्चा आयोजित की गई, जिसमें बहाई समुदाय के सदस्य जिया ईशरगाही व शुभांकित पानीग्रही ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सर, आज बहाई समुदाय के लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या कहेंगे आज के दिन के? Today is the day of the martyrdom of the Bab. In 1850, the Bab was martyred in Tabriz, Iran. He was the one who was a herald of Baha'u'llah. He had come to awaken the people for the coming of Baha'u'llah. And these twin manifestations of God have come for today to unite mankind. And when we look at all the scriptures of the past, the prophets of past have all predicted. That was the age of prophecy. They had said that they would come back someday. We believe that this is the day of fulfillment, where Baha'u'llah and the Bab have come to unite the world. किस तरह से समुदाय का समाज में प्रसार हो और किस विषय को लेकर समुदाय आगे बढ़ रहा है? So our aim is to unite mankind, because this is what Baha'u'llah has told. At present, the Baha'is are all over the world. There is no corner of the world where you will not find Baha'is. And everybody is aiming and having the same intention. We educate the children, we bring them up, we educate them especially in morals and good ethics. And that is why to bring about unity, because education plays a very important role. And our sincere appeal is to whole of mankind to independently investigate and find out if this faith is right, to accept it. Because only by coming together we are able to unite. And the world situation, when we look at today, we see it's in real dire strait, very bad condition. So it's only through the power of God that unity can be brought about, not through the politicians that we have today, who are really creating most problem in the world. बहाई समुदाय के विचारों से क्या आपको लगता है समाज में परिवर्तन होगा? There is no shortcut to this. Mankind has to accept an independent source which is divinely ordained, which does not come from mankind. No human reformist is able to draw mankind together. When you look at any religion of the world, wherever it has come, it has united its own community and created its own civilization. Today, the Bab and Baha'u'llah are creating a civilization which will last for a long time, another maybe 1,000 years. But we are just 180 years old right now, and we are growing every part of the world, uniting people of all races, caste, creed, without prejudice, because prejudice is something which is hurting mankind at present. So our aim is to eradicate mankind of prejudice. बहाउल्लाह जी के विचारों के तहत समाज किस तरह का होना चाहिए, उसकी दृष्टि क्या थी इस चीज को लेकर? Sorry. यानी बहाउल्लाह जी जो थे, उनके विचार जो थे, उस विचारों के अंदर समाज किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की कम्युनिटी बननी चाहिए अपनी? You know, today is a time when we consider as the time of unity of mankind,
and maturity of mankind. We are heading towards mature community. When we talk of that, Baha'u'llah, what he has done is, he has put away the priest class. He says that mankind should be educated. Each one of us should receive education and should be able to understand religion and decide for ourselves. This will, when there is education in the community, mankind rises to a different level. And he says that now we don't need the priest class, but the activities of to be administered, he has created an administrative institution which works on the local, national and international level, which has two arms which support each other. Very briefly, but this administration is divinely ordained. It is not created by the Baha'is themselves. It has been given to us by Baha'u'llah. And that is why every year there is election on a local and national level, and on the international level once in 5 years. And this body keeps the Baha'is together, united. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पे बहाई समुदाय की ओर से जिस सत्र का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे, आज की क्या बात है? जी नमस्ते। आज विश्व भर में जो बहाई हैं, बहाउल्लाह के जो अनुयायी हैं, वो आज का दिन भगवान बाप की शहादत को, इस अवसर को वो ध्यान में लाते हैं, क्योंकि 1850 में आज ही के दिन भगवान बाप शिराज में उनको शहादत प्राप्त हुई थी। और हमने कई बार, हम अगर इतिहास में देखें तो धर्म के जो स्थापक रहते हैं, प्रवर्तक रहते हैं, जैसे क्राइस्ट हों, हम देखते हैं कि कई बार उनको एक अंतिम त्याग देना पड़ता है अपने जीवन का। तो इन्होंने वैसे ही अपने जीवन का अंतिम त्याग दिया, ताकि मानव जाति की जो सभी प्रजा है वो अपने पूर्वाग्रह की बेड़ियों से वो मतलब स्वतंत्र हो पाएँ। जी। तो बहाई समुदाय का विचार जो है वो समाज के अंतर्गत किस तरह से फैलाने की कोशिश बहाई समुदाय कर रहा है? जी, हम कई बार जो समुदायों के लिए हम कार्य करते हैं, और हमारे कई कार्य हैं, जैसे कि बच्चों की नैतिक शिक्षा है, हम युवाओं के साथ काम करते हैं। और ये जो काम है, ये हम केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं करते हैं, आध्यात्मिक और उनकी जीविका के लिए, मतलब अर्थात सोशल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हम करते हैं। क्योंकि हमारा जो मानना है, आज की जो अधिकतम जो दुविधाएं हैं समाज में, वो केवल आर्थिक दुविधाएं नहीं है, वो आध्यात्मिक दुविधाएं भी हैं। तो जैसे कि चीज़ें हैं ग्रीड और डिसऑनेस्टी, ये सब अगर हम देखें, ये अल्टीमेटली ये सारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, आध्यात्मिक समस्याएं हैं। और आध्यात्मिक समस्याओं का हल आध्यात्मिकता में मिलती है। और आध्यात्मिकता का जो स्रोत है वो दिव्य ज्ञान है, जो कि धर्म प्रवर्तक अधिकतर लेके आते हैं। तो हमारा बस वही विचार है कि हम अपने जीवन में, अपने समुदाय में और समाज में हम मिलकर, केवल बहाई नहीं, हम मिलकर हम कैसे इन जो समस्याएं हैं इनका समाधान निकाल पाएँ। और हमारा कुछ ऐसा सोच नहीं होता है कि हम केवल बहाइयों के साथ काम करें, क्योंकि समस्याएं सबकी है। जी। एजुकेशन पे ज़्यादा बहाई फोकस? जी, एजुकेशन, शिक्षा पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो दिव्य चेतना है वो शिक्षा के द्वारा उसको आप एक किस्म से आप इंस्पायर कर सकते हैं। और हमने देखा है, कई बार कहा जाता है कि अगर शिक्षा को हम बढ़ावा दें तो बहुत सारी जो पूर्वाग्रह हैं आज की दुनिया में, हम उसको दूर कर सकेंगे। तो कई सिद्धांत हैं, कई मूल सिद्धांत हैं भाई धर्म के, जैसे कि स्त्री और पुरुष की एकता। तो हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ता है, वहाँ पे स्त्रियों को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वैसे इसीलिए इसी चीज़ को, मतलब इसी मूल को हम अगर ध्यान में रखते हुए, हम शिक्षा का जो फील्ड है उसमें कई बार हम कोशिश करते हैं। और ये केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन नहीं है, हम इसको एक आध्यात्मिक रूप भी देते हैं।
क्योंकि हर चीज़ को हम एक आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे छोटे बच्चों की कक्षाएं होती हैं और युवाओं की भी कक्षाएं होती हैं और बड़े लोगों की भी होती हैं, और ये केवल मतलब बहाइयों के लिए नहीं है। हर जगह हमने देखा है कि जहाँ जहाँ जिज्ञासा है आध्यात्मिकता की तरफ, जहाँ जहाँ लोगों में थोड़ी सी इच्छा है कि वो आत्मा के बारे में या प्रार्थना के बारे में या दिव्य जीवन, जो असली जीवन है, ये तो कुछ सालों का जीवन है, इसके बाद हमारी जो असली जीवन है वो आत्मा की जीवन है, तो अगर इसके बारे में उनकी और जिज्ञासा बढ़ती है तो उसको कई बार हम मिल के पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी शिक्षा का एक तरीका है। चैनल के माध्यम से समाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप? समाज के लिए ये बहुत ही एक आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि मेरा मैसेज ये होगा कि समाज में हम सभी को अभी थोड़ा नैतिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें जो समस्याएं हैं हमारे अपने जीवन में या समाज के जीवन में, हमें वास्तविक तरीके से हमें समझना चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं इसका मूल क्या है। क्या ये केवल कुछ पैसों से समाधान होगा इसका, या केवल टेक्नोलॉजी से समाधान होगा, या इसमें मनुष्य की सोच का परिवर्तन ज़रूरी है। और अगर सोच की परिवर्तन ज़रूरी है तो कैसे इसको मिल के हम इन चीज़ों का समाधान कर सकें। और मुझे लगता है नैतिक शिक्षा के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में, और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हम कैसे जागरूक कर सकें नैतिकता के बारे में, ये भी शायद एक सोच रहनी चाहिए।